joy to welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. आनंद से यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करते हैं। We are going to meditate the word of the Lord from the book of Ruth today. आज हम लोग जो ध्यान करने जा रहे हैं या पवित्र बाइबल से हम लोग रूत पुस्तक देखेंगे God is going to speak to us. और ईश्वर हम लोग को बताने जा रहे हैं God is living. और ईश्वर जीवित है Jesus Christ is real. और प्रभु यीशु मसीह वास्तव है Jesus is living today. और प्रभु यीशु मसीह अभी हम लोग के साथ जीवित है। Our Creator is living today. हम लोग का सृष्टिकर्ता हम लोग के साथ जिंदा है। In as much as we are real, Jesus is very real. हम लोग जैसे ही हम लोग वास्तव है, यीशु मसीह ही हम लोग के साथ उसी तरह का वास्तव है। In as much as He is real, His word is also real. वो जैसा वास्तव है उसी का पवित्र वचन भी वो वास्तव है। You can test this word. आप इसको चाख सकते हैं। This word will speak. और इस वचन हम लोग को बताता है। This word delivers. और इस वचन हम लोग के पास आ जाता है। This word takes us to heaven. और इस वचन हम लोग को स्वर्ग लेके जाएगा। And this word will bless us. और इस वचन से हम लोग आशीषित होते हैं। This word will increase faith in you to receive a blessing from the Lord. और इस वचन हम लोग को आशीष लाएगा और हम लोग का जीवन में आशीष से भर देगा। To assist you in kindling your faith, in increasing the faith in your life, I am preaching the word of God to you. आपको विश्वास से जैसे बढ़ोत्तर होगा और आपका जीवन में जैसे उन्नति होगा, इसलिए हम लोग ये वचन आपके पास आज रख रहे हैं। Please listen as I read from the book of Ruth, first chapter. और ध्यान से सुनिए, हम लोग जो पुस्तक रूत से बता रहे हैं अभी। Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलीम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्री के संग लेकर मोयाब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they came into the country of Moab and continued there. उस पुरुष का नाम एलीमेलक और उसका पत्नी का नाम नायोमी और उसके 2 बेटे का नाम महलोन और किलियोन थे। एफरात थे अर्थात यहूदा के बेथलीम के रहने वाली थे। वो मोयाब के देश में आकर वहाँ रहे। And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. और नायोमी का पति एलीमेलक मर गया और नायोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। And they took them wives of the women of Moab. The name of the one was Orpha, and the name of the other Ruth, and they dwelled about 10 years. और उन्होंने एक मोयाबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम अर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो कोई 10 वर्ष रहे। And Mahlon and Chilion died also, both of them, and the woman was left of her 2 sons and her husband. जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नायोमी अपनी दोनों पुत्री और पति से रहित हो गए। This is a beautiful incident. यह एक बहुत सुंदर घटना। It took place long time back in Bethlehem, Judah. यहूदा का बेथलीम में बहुत साल पहले ये घटना घटी थी। There is a family here we see. यहाँ एक परिवार हम लोग अभी देखें। The father, mother and 2 sons. पिता, माता और उनका दोनों बेटा। And they were dwelling in a city called Bethlehem, Judah. उन लोग एक शहर में रहते थे, वहाँ यहूदा का बेथलीम हम लोग जानते हैं। Bethlehem means house of bread. और हम लोग बेथलीम का अर्थ जानते हैं और आहार का घर। Judah means praise. और यहूदा का मतलब प्रशंसा। What a blessing is that. कितना आशीष भरा हुआ है इसमें। House of bread, dwelling in house of bread. और उसी घर में हम रहते हैं जहाँ आहार से भरा हुआ And praise. और प्रशंसा। So that's how God has blessed these people. और इसी तरह ईश्वर इन लोग को आशीष दिया था। And the Naomi's name tells us that the name of this lady, the mother, is blessing. और इस घर का जो माता थे नायोमी और उनका नाम का अर्थ ये था कि आशीष। So blessing, joy, peace, these are all good signs. और आशीष, आनंद और शांति ये सब अच्छा चिन्ह है। So such a wonderful family living in Bethlehem, Judah, but there was a famine in that land. इतना सुंदर शहर में उन लोग रहते थे परंतु वहाँ अकाल पड़ा था। You know why there is a famine in a land
which named house of bread. जिस जगह का नाम आहार का घर, वहाँ क्यों अकाल पड़ा? Very contradicting one. ये थोड़ा एक प्रश्न बचियाता है। Now we have to understand certain things. हम लोग इसमें कुछ समझना चाहिए। Sometimes people ask why this happens. लोग इसलिए पूछते हैं क्यों इसलिए यहाँ ऐसे हुआ। You see, we see the history in this Bible that whenever the people of God, they committed sin and went away from God and went against God, God had to send certain judgments to the people in order to make them understand that they have to again fit into the regulation of God. हम लोग बाइबल का इतिहास में जब देखते थे और जहाँ लोग ईश्वर को, अपना सृष्टिकर्ता को भूल के दूसरा रास्ता में चला जाते थे, ईश्वर इसलिए न्याय करने के लिए उन लोग को उसी रास्ता में लाने के लिए कुछ इस तरह का विपत्ति लाते थे जो लोग फिर उसी के पीछे आएंगे। Just before this book, there is another book in the Old Testament called the Book of Judges. हम लोग इसी पुस्तक से पहले हम लोग के विचार जो पुस्तक है हम लोग देखते हैं। And you see a lot of people, God raised them to judge the people of God, Israel. और उसी न्याय पुस्तक में हम लोग देखते हैं इसराइल में बहुत सारे न्यायी लोग, उन लोग इसराइल लोग को विचार किया। So each judge would come, one judge would come and lead the people into the God's laws, and he will make the nation as theocratic nation. और हर एक न्यायी आते थे और इसराइल लोग को ईश्वर का इच्छा से उन लोग बताते थे और उसी रास्ते में ले लेते थे और ईश्वर का इच्छा वहाँ पूरा करते थे। But when the judge dies, another judge come, but in between the people of God would again go back to their old ways and irritate God. जब कोई न्यायी मर जाता था और एक दूसरा न्यायी आता था और एक जाने के बाद और दूसरा आता था, उसी का बीच में जो समय रहता था उसी समय लोग अपना परमेश्वर को भूल के दूसरा रास्ता जाते थे। So God had to send little judgments and then bring them back into the fold and correct them. और ईश्वर ने इसी समय कुछ घटना घटाते थे तो इसलिए लोग फिर उसी रास्ते में आने के लिए। So when the famine comes, we have to understand first why this famine comes, what is the reason, and what I did and what I must do. जब इस अकाल इस शहर में पड़ा तो हम लोग को समझना चाहिए कि इसलिए मेरा क्या उसमें है और इसलिए वो क्यों मेरे जीवन में ऐसे आया। So there is a lesson God wants to teach us. तो इसलिए इसमें कुछ शिक्षा करने के लिए ईश्वर हम लोग को देते हैं। Anyway, whatever it may be, but there is no food in Bethlehem, Judah. जो भी उसमें हो परंतु उस समय बेथलेहम में आहार नहीं था। So this family moved to another country called Moab, which is not an Israelite nation, but it's a non-Jewish nation, and a nation which does not know God. और इसलिए इस परिवार ने बेथलेहम को छोड़ के और यहूदा का बेथलेहम को छोड़ के उन लोग मोआब को चला गए। मोआब एक देश है जहाँ ईश्वर को नहीं जानते थे। They found two girls, Orpha and Ruth, and they got them married to their two sons. और उन लोग वहाँ दोनों लड़की देख लिए, वो मोआब में, वहाँ क्या नाम अर्पा और दूसरा नाम रूथ थे, उन दोनों बेटा के साथ विवाह कर लिए। Fine, but unfortunately certain things are happening. दुर्भाग्यवशतः उस समय कुछ घटना घटी। The Naomi's husband Elimelech dies there. नयोमी का जो पति था एलीमेलेक वहाँ मर गए। And after some time the two sons also die. और कुछ साल के बाद दोनों बेटा भी मर गए। So all the women folk are left with. अभी ओनली महिला लोग उसी में रहा, No male folk. उन लोग का परिवार में कोई पुरुष नहीं था। And all the three people are now widows. अभी ये तीनों महिला उन लोग विधवा बन गए। What a sad thing is that. उन लोग का जीवन में कितना दुख आ गया। First they migrated from the house of bread. अभी पहले उन लोग उसी ईश्वर का जो आहार का घर उससे छोड़ के आए, Went into another nation. और दूसरा देश को चला गए, And that Naomi becomes a widow. और नयोमी विधवा बन गए, And the two sons die there, and the daughter-in-laws are also widows now. और उन दोनों का बेटा मर गया और उसका अभी दोनों बेटी भी उन लोग जो लाए थे उन लोग भी विधवा बन गए। So sorrow after sorrow was added to them. और उन लोग का परिवार में दुख का ऊपर और एक दुख आ गया। What to do at this situation? इस समय में उन लोग क्या करेंगे? There is a shame और उन लोग का लज्जा भी है and a guilty feeling. और उन लोग का दोषी भी लगता है। Future is not known. उन लोग का भविष्य का पता नहीं।
And how to escape from this danger, this situation, no one knows. और उन लोग इसी विपत्ति से कैसे बाहर आएंगे, कैसे नहीं जानते। Who will come for her rescue? No one knows. उन लोग को उद्धार करने के लिए कौन आएगा। So Naomi is now filled with remorse feeling. और नओमी यहाँ अपने जीवन को दुख से भरा करता है। My dear brothers and sisters, there is a truth here. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ एक सच्चाई है। You see, God is dealing with us. ईश्वर हम लोग के साथ रहता है। There is a truth that we have to learn here. एक सच्चाई हम लोग यहाँ शिक्षा करना चाहिए। We need to submit ourselves in the hands of God for God to act. और इसलिए हम लोग ईश्वर के सामने अपने को समर्पण करके ईश्वर का इच्छा पालन करना होगा। God will act for our good. ईश्वर जो कार्य करते हैं हम लोग के लिए भलाई के लिए। And what we need to do, हम लोग को क्या करना होगा। we need to humble ourselves and then find out where we went wrong. और हम लोग को खुद को नम्र करना होगा और ढूंढना पड़ेगा कहाँ भूल हुआ। So repentance is very important. इसलिए अनुताप बहुत मुख्य विषय है। Repentance means, with a broken heart feeling sorry for what we have done. और अनुताप का मतलब यह है कि हम लोग जो कुछ भूल के हैं उसीलिए हम लोग हृदय में हम लोग तो चूर करके ईश्वर के पास आना है। When a person breaks his heart and with humility accepts what he has done is absolutely wrong and comes short of the expectation of God and then goes to God for favor and mercy and help, 100% God is ready to listen to that and then wipe off the guilty feeling and he forgives every sin that man had committed. एक आदमी जब अनुताप करके अपना हृदय में वो उसका चूर करके टूटा हुआ हृदय में परमेश्वर के पास कुछ आशा करके आता है, उस समय ईश्वर ने 100% उसमें से निश्चित है कि ईश्वर उसी का सुनता है और उसी का हर एक दुख और पाप को वो ले जाता है। If a man commits a mistake against another man and if he does not feel sorry from his heart, how the other man is feeling very bad and then he is getting angry. एक आदमी जब दूसरा आदमी के लिए कुछ भूल कर बैठता है और उसमें से कुछ दुखित नहीं बताता है, तो वो जो दूसरा आदमी उसका मन में कितना उसका क्रोधित होगा ये आदमी ऊपर जो उनको भूल किया। We say sometimes, whether this man has a stone heart or is a man or an animal, we'll say. हम लोग बताते हैं कि ये आदमी कैसा है, उसका हृदय इतना कठिन है। Or a man or an animal. वो एक आदमी है ना एक पशु है। Even man is getting angry. और मनुष्य के ऊपर क्रोधित हो जाता है। How much more God then? तो अब ईश्वर इससे विषय में कितना क्रोधित होंगे। We are, created in a wonderful way. और हम लोग को ईश्वर ने अति सुंदर से बनाया है। We can open the issue or we can close the issue. हम लोग कोई विषय को बाहर रख सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते We हैं। can be transparent or we can hide things. और हम लोग उसको छुपा सकते हैं, नहीं तो दिखा भी सकते हैं। We can be true and at the same time we can act. हम लोग उसको सच्चाई भी ऊपर आ जाते हैं, नहीं तो उसको हम लोग कुछ कार्य में करके दिखा देते हैं। But acting is very well seen outside, but still they don't have shame to admit the truth. परंतु पाप करके ऐसे दिखाना जैसे कि कुछ नहीं किया है, As though nothing has happened, people keep on going, that's all. और जैसे कि उन लोग ऐसे दिखाते हैं कि कुछ नहीं घटा, लोग इसमें चलते हैं। Well, it can work with men, but it will never work with God. ठीक है, ये मनुष्य का जीवन में कर सकता है मनुष्य, परंतु ईश्वर ऐसे नहीं है। Because the Bible very clearly says here, क्योंकि बाइबल ने पूरा साफ बताया है, man looks at the face, but God looks at the heart. और मनुष्य ऊपर बदन देखता है परंतु ईश्वर ने हृदय देखते हैं। That's all man can do. जाओ मनुष्य कर सकता है। Man can see the face, मनुष्य केवल बदन देखेगा, but he cannot see the heart of a man. परंतु ये दूसरा आदमी का वो हृदय नहीं जान सकता। But God is not the one who will only see the face, परंतु ईश्वर ऐसा नहीं है कि ऊपर मुंह और बदन देखेंगे, but he will see the heart of a man. परंतु मनुष्य का हृदय को देखते हैं। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, how much we need to repent before God. तो इसलिए हम लोग जब देखेंगे हम लोग कितना अनुताप करना चाहिए ईश्वर के सामने। Our repentance brings mercy. और हम लोग का अनुताप ईश्वर का अनुग्रह लाए। Fine, that is the other part of the story. Let me come back to Ruth. ठीक है, हम लोग अभी रूथ को देखेंगे। And now mother Naomi, she gets a nice idea one day. और इस नओमी जो माँ थी घर का, उसका जो मन में एक चिंताधारा ऐसे आई, Why not I go back to Bethlehem, Judah, my own country? मैं क्यों नहीं मेरा जो खुद का देश है और बेथलेहम में मैं लौट के चला जाऊं।
But these two girls are from Moab and I have to go along with them. मेरे साथ जो मोआब का दो बहू बेटी है उन लोग को मैं कैसे लेके जाऊं? So my daughter-in-laws, I don't know whether they love Israel or not. और मेरा जो बहू है और उन लोग इसराइल को प्रेम करेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता। Whether they like to come along with the old woman. और उन लोग ये मेरा बूढ़ी में बुढ़ा समय में उन लोग मेरे साथ आएंगे कि नहीं मैं नहीं जानता। So why don't I request them to go away? और मैं साथ सोचता हूँ मैं विनती करूंगा कि तुम लोग मुझसे चला जाओ। So she turned to the daughter-in-laws now. अभी उन लोगों बहू को बताने लगी And she requested one after the other to move, to get away, to stay in Moab only, but she wanted to come to Bethlehem, Judah. और ऐसे उन लोगों को बताई कि तुम दोनों इस मोआब देश में रह जाओ और मैं चला जाता हूँ। अच्छा, both the girls they started the journey along with the old woman for some time. परंतु दोनों बहू ने वो बूढ़ी माँ के साथ अपनी सासू के साथ कुछ देर तक चले। But when the middle of the way, one of the daughter-in-laws by name Orpha, परंतु रास्ता का बीच में कुछ देर दूर के बाद उनका एक जो बहू थे उसका नाम अर्पा था। since this old lady was trying to evade them and ask them to go away, जब तक वो बूढ़ी ने उसको बताता रहा था कि तुम लोग मुझसे चला जाओ, that Orpha, she shed some crocodile tears and then said, all right, I am going, mama, thank you, goodbye. और वो अर्पा जो थोड़ी समय के लिए अपना आंसू बहाता वो उस समय बता दिया कि अच्छा ठीक है माँ मैं छोड़ के जा रहा हूँ। But there is another girl. परंतु उसके साथ और एक बहू So है। mother wanted to try the same trick with this girl also. तो इसलिए वो सासू माँ सोचे कि उसी बहू को भी उससे ऐसे उसको बता के निकाल दें। First of all, let's see what Naomi said. पहले हम लोग देखेंगे नाओमी क्या बताए। Verse number 15 says, 15 पद ऐसे बताती है, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोग और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। But then the Ruth said, रूत बोली, and Ruth said, entreat me not to leave thee or to return from following after thee, for whither thou goest I will go. तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ और लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। And where thou lodgest I will lodge. और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। Thy people shall be my people, तेरे लोग मेरे लोग होंगे and thy God my God. और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Where thou diest I will die, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी and there will I be buried. और वहाँ मुझे मिट्टी दिया जाएगी। The Lord do so to me, and more also, if I ought but death depart thee from me. यदि मृत्यु छोड़े और किसी कारण में तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे ऐसे ही वरन उससे भी अधिक करे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, but this lady, this Ruth, she said, no, your people are my people. रूत ने वो बताएगी कि तुम्हारा लोग मेरा लोग होंगे, Your God is my God. तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। She is not a Jewish woman. वो यहूदी का स्त्री लोग नहीं थे, She followed some other religion. वो अपना जीवन में दूसरा धर्म जा रहा था। But she understood who God is. परंतु वो समझने लगा ईश्वर कौन है, And God of Israel is the God who created the universe. और वो समझने लगा कि इस्राएल का परमेश्वर वो पूरा विश्व को बनाया है, And He is the creator of all human beings. और वो है समस्त सृष्टि का आधार है। So she knew that. तो इसलिए वो पता चल गया उसको। And said when the mother-in-law is trying to, request her to go away, but she says, I love your God. She says. और जब उसका सासू माँ बता रहे कि तुम मुझे छोड़ के चला जाओ, परंतु वो बता रहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर को प्रेम करता हूँ। She understood the true God. वो समझने लगा कि सच्चाई परमेश्वर कौन है। So she said, wherever you go, I will follow. तो इसलिए वो बताए तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ जाऊंगी, Because I find truth in you. क्योंकि मुझे आपके पास सच्चाई मिलता I है see that God is true. और मुझे देखने मिला कि तुम्हारा ईश्वर सच्चा I है। see your God is true. मुझे यह देखने मिला कि तुम्हारा ईश्वर सच्चा है। Where you die, I will die. तुम जहाँ मरोगी मैं वहाँ मरूंगी, And where you dwell, I will dwell. तुम जहाँ टिकोगे मैं वहाँ टिकोगी। Only death should separate us, Mama. Nothing else, she केवल said. मृत्यु हम लोग को अलग कर सकता, नहीं तो हम लोग कुछ भी अलग नहीं कर सकेगा। What a statement she made. कितना बड़ा दृढ़ बात वो She बोली। determined in her heart to follow God of
heavens. और वो अपना हृदय में दृढ़ता से ले लिया कि वो स्वर्ग का परमेश्वर को पीछे चले गया And she started journeying. और उसके साथ यात्रा किया She never went back. और उसे पीछे नहीं मोड़ के देखा। But Naomi was feeling very bad. परंतु नाओमी ने वो बहुत दुखी हुआ, Because people would ask, a lot of people would ask, what happened to your husband? What happened to your sons? क्योंकि वो जिस देश में जा रहा था अभी उसको पूछे कि तुम्हारा पति का विषय क्या हुआ और तुम्हारे जीवन में ऐसे क्यों आई। And she will have to explain the whole story there. तो उसका पता उसको सब बताना होगा। In just 10 years, these things happened. 10 साल का अंदर ये सब उसका जीवन में आए A guilty feeling, that really killed this woman. और उसका हृदय में जो दोषी था उसको वो मार रहा था। And when she came back to Bethlehem, she said, don't call me Naomi, but call me Mara. और जब वो बेथलेहम आ गया सबको बताया कि मुझे नाओमी मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ। Mara means bitterness. और मारा का मतलब तिक्तता। I am blessed person, but now I have become bitter. और मैं एक आशीष से भरा हुआ था परंतु मुझे जीवन में अभी तिक्तता आ गया। But God changed the plan, परंतु ईश्वर उसके लिए उसको योजना दूसरा बना दिया। Even if we do blunder, जब हम लोग भूल कर बैठते भी, if we are children of God and repent and turn back to God, और जब हम लोग अनुताप करके हम लोग ईश्वर के पास आ जाते He हैं can change all that loss into a blessing. और हम लोग का जीवन में जितना खेती है उसका वो आशीष से भर देता I है। am not saying these things just to say and while away the time. और मैं इसलिए ये नहीं बताता हूँ कि मैं कुछ समय उसको बताना होगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, Because God is real. क्योंकि ईश्वर वास्तव है, Because He does good things. क्योंकि वो वास्तव काम सच्चाई काम करता है, Because He came to die on the cross and shed His blood in the name Jesus Christ. क्योंकि वो क्रूस के ऊपर प्राण दिया, अपना लहू बहाया उस यीशु मसीह का नाम, And because He is living even today. और आज भी वो हम लोग के साथ जिंदा है। That's why I am preaching the gospel. इसलिए मैं सुसमाचार पहुंचाता हूँ, Otherwise my preaching is waste. नहीं तो मेरा जो सुसमाचार देना वो कुछ मूल्य नहीं है, Otherwise I am wasting my time. और नहीं तो मैं मेरा समय नष्ट कर रहा हूँ। His love is so real उसका प्रेम वास्तव होता है that it can melt anybody's heart. और उसका कोई भी हृदय में वो पहुंच जाता है। As you give your heart to this Jesus Christ of Nazareth, जब आप अपनी हृदय को यीशु मसीह को देंगे, because He is our creator, क्योंकि वो हम लोग का सृष्टि करता है, because He is living today, क्योंकि आज हम लोग के साथ जिंदा है, that's why I am preaching this news. इसलिए मैं सुसमाचार पहुंचाता हूँ। We were about to commit suicide and die in 1982. और मैं मेरा परिवार हम लोग 1982 में मरने जा रहे थे। I am not a Christian by birth, I am a Brahmin by birth. मैं यीशु मसीह का परिवार में जन्म नहीं हुआ परंतु ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, I was very strong in my ways, और मेरा जो रास्ता था मैं उसमें बहुत दृढ़ में very दृढ़ता sincere था, in my ways. और मेरा उसमें पूरा ठीक से चल रहा था, But then my heart was yearning for truth. परंतु मेरा हृदय को सच्चाई को ढूंढ रहा था, And there was no peace in our family. और हम लोग का परिवार में शांति नहीं था। We thought that destroying our souls is the only way to escape the danger, escape the grief and sorrow and every sickness in this world. और हम लोग सोचा कि हम लोग आत्मा को नष्ट कर देना और इसी समस्त बीमारी से और बुराई से बच जाना है। That's what we were thinking. हम लोग इसी तरह का सोचते हैं, But no, God is there. क्योंकि ईश्वर वहाँ है And He revealed Himself to us. और हम लोग के पास वो प्रकाशित हुआ And His love came into my heart. और उसी का प्रेम हम लोग का हृदय में आ गया। And my mother gave up the idea of committing suicide. और मेरा माँ ने सोचा था कि वो आत्महत्या करके मरेगा, God saved us from that danger. और ईश्वर ने उसी विपद से हम लोग बचाया। Otherwise we would have destroyed our souls and our souls would have landed in hellfire today. नहीं तो हम लोग का आत्मा को हम लोग नष्ट करके हम लोग आज नरक में पड़े हुए होंगे। God is real, brother. ईश्वर वास्तव में मेरा भाई है, His word is real, उसी brother. का वचन वास्तव है। That's why I am preaching the news. इसलिए मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। God can change anything and everything. हाँ, ईश्वर सब कुछ परिवर्तन कर सकता है। He changed our lives. वो हम लोग का जीवन को परिवर्तन किया। Today we are living. आज हम लोग जिंदा है, And at the closure of our journey in this world, God has given us the hope and we know where we are going. और हम लोग जानते हैं जीवन का यात्रा जब खत्म हो जाएगा वो ईश्वर ने हम लोग को आशा से भर दिया। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? There is another world waiting for us. और हम लोग के लिए और एक दुनिया जो हम लोग के लिए अपेक्षा में That है। world is a blessed and glorious world
prepared for people of God. वो दुनिया एक महान गौरव, एक सुंदर जगह है जो उसी का लोग के लिए बना गया है। Jesus wants to give you also. और यीशु मसीह चाहते हो आपको देने के लिए। There is absolutely no difference between people for Jesus. वहाँ कोई ऐसे तफात नहीं कि ईश्वर का मनुष्य और दूसरा के बारे में। He is not respecter of persons. वो कभी उस तुलना दूसरा को नहीं करते। The Bible says, बाइबल ऐसे बताती है, anyone in the whole world, जो भी कोई इस पृथ्वी में हो, if he repents, और जब अनुताप से आए confesses his sins, और अपना पाप को स्वीकार करे and requests God to cleanse him, और ईश्वर को अनुरोध करे कि उसका पाप को धो दे, oh, his compassion will flow. और उसका दया उसके ऊपर आ जाएगा, He will cleanse you with his own blood और वो अपना लहू से, वो खुद का लहू से धो देंगे, and will wipe away every past of your life. और अतीत का हर तरह का पाप को वो धो देंगे, Give you a brand new future. और एक नया एक भविष्य बनाएंगे, Brand new future. एक नया भविष्य बनाएंगे। No man in this world can give you. और कोई मनुष्य इस जगत में नहीं दे सकता। Oh, that peace will enter your heart. No world, no man, no devil can give you this. और वो शांति आपका हृदय में रहेगा जो जगत और कोई अंधकार शक्ति आपको नहीं दे सकेगा, And no devil can take the peace away from you. और कोई भी अंधकार से दुष्टता आत्मा उसको नहीं ले जा सकता। That's why Jesus said, I give my own peace to you, he said. इसीलिए यीशु मसीह ने बताया, मैं मेरा शांति तुमको देता हूँ, Not the way the world gives you. उसी तरह नहीं जिस दुनिया देता है, And the world cannot take it away from you, he said. और इस दुनिया वो शांति नहीं ले जा This सकता। family should have stayed in Bethlehem, Judah. और इस परिवार ने उसी यहूदा का बेथलेहम में रहना चाहिए। However, जो भी हो, the mistake that these people have done, God changed into a blessing. और इस परिवार ने वो एक भूल किया था, परंतु उन लोग को ईश्वर ने फिर आशीषित भरा। That girl Ruth had determined to follow God. और वहाँ वही बेटी रूत वो मन में दृढ़ता लिया कि ईश्वर को One girl did not. और उसी में एक बेटी नहीं किया, She ran away. और वहाँ आधी रास्ते में चला गया। But Ruth, she stuck to her decision. और रूत ने परंतु अपना वो जो निर्णय में वो दृढ़ता था। Jesus is calling you to know him today. और यीशु मसीह आपको बुला रहा है आज उसको जानने के लिए। What he wants, he does not want your money, he does not want your land, he doesn't want anything, but he wants all of your heart, wholeheartedly. If you repent and if you invite him into your heart, he is ready to come inside. वो नहीं चाहते आपका धन और आपका खेती और बाड़ी, वो चाहता है कि आपका पूरा हृदय अनुताप से भरा होकर उसके पास आए। The most blessed news is that this Ruth the name of the Ruth had found a place in the genealogy through which Jesus Christ came. और सबसे एक आश्चर्य, एक महान आशीष भरा यह है इसमें कि वो रूत का नाम और यीशु मसीह का जो वंशावली है उसी में उसका नाम है। She is blessed like anything. और बहुत बड़ा आशीष उसको जीवन My में dear मिला। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the decision that we make to know God is very important. जो निष्पत्ति आप आज ले रहे हैं ईश्वर आप कैसे रहेंगे, I know we are godly people. हम लोग जानते हैं हम लोग ईश्वर का लोग हैं, We have a desire to know God. हम लोग इच्छा है कि ईश्वर को जाने। But then the true God is revealing himself to you now. और सच्चाई परमेश्वर अपने को प्रकाशित किया आपको जानने के The लिए। peace and the joy you are longing for. जो शांति और आनंद आप ढूंढ रहे हैं, You have been vexed because your life has been like it's looking like a cursed life now. आप इसी तरह का जीवन बिता रहे हैं क्योंकि आपका जीवन में वो जो सांप का जीवन है। You are just thinking, is there any ray of hope in my life? आप इस सोच रहे हैं कि कोई आशा का किरण मेरे ऊपर होगा। God is ready to change your life, brother. प्रिय भाई, ईश्वर आपका जीवन को परिवर्तन My करेंगे। sister, God is able to change your loss into a blessing. मेरे प्रिय बहन, ईश्वर आपका सबका खेती को आपका पूरा आशीषित भरा कर देंगे। But then God is expecting you to open your heart and receive Jesus. He is your savior. परंतु ईश्वर चाहता है कि आप अपनी हृदय को खोल दे और यीशु मसीह को परित्राण करता को आप ग्रहण करें। He will bless you right in this world, and at the end of the journey, He will take you to heaven. और वो प्रस्तुत है इस दुनिया में आपको आशीषित करेंगे और ये निश्चित है कि वो यात्रा खत्म होने के बाद वो आपको स्वर्ग ले जाएंगे। Under the heavens and on the earth, the only name Jesus Christ is given that mankind should be saved. आकाश के नीचे यीशु मसीह के नाम से सिवा और कोई नाम नहीं जो हम लोग को परित्राण दे सकेगा। In no other name we have salvation. और उस कोई नाम में परित्राण नहीं है, Only in the name of Jesus. केवल यीशु मसीह का नाम से। Father, in the name of Jesus, I ask you, Father, to bless the viewers, oh God, that you would help them to open their hearts to receive Jesus as their Savior and be blessed and be saved and inherit the eternal life, Lord. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि जिन लोग आज देख रहे हैं कार्यक्रम, उन लोग का जीवन में तू प्रभु आ जा, उन लोग का जीवन का हृदय खोल दे और तुमको परित्राण रूप में ग्रहण करे।
Bless them, Lord. उन लोग को आशीषित भरा कर, Heal their bodies also. उन लोग का शरीर को चंगाई दे Give दे। them the peace that they are longing for. और जिस दिन उन लोग ढूंढ रहे जो शांति, तू अपना Lord शांति दे दे। Jesus, as they listen to you, touch them, Lord. जो आपका बात वो सुन रहे उन लोग को तू स्पर्श कर, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen, Father. मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी